Okay, today we will start with design of DStatCom. So, design of till now we have studied about uh, custom power devices. So, custom power devices has been used to mitigate power used to mitigate power quality power quality problems power quality problems in distribution system. Whereas facts is used to mitigate power quality problems in transmission line. In custom power devices, we have DStatCom, which is used to mitigate current based PQ problems. Okay. Whereas another device that is of custom power device, that is DVR, dynamic voltage restorer, is used to mitigate voltage burst problems. Whereas third device, custom power device, is UPQC, universal universal power quality conditioner, is used to mitigate both current and voltage. Together it can mitigate both current and voltage based power quality problems. Okay. This is the this is three devices custom power device which is used to mitigate power quality problems in the distribution system. These three devices. Okay. This device. Okay. Whereas facts is used to mitigate power quality problem in the transmission system. So we can say custom power devices, CPD, and here is facts. Custom power device is used in distribution system, whereas facts is used in transmission system. Custom power devices, we have three types: DStatCom, then we have DVR, and we have UPQC. Whereas in transmission line, in place of DStatCom, we have StatCom. DVR, there is SSC. In UPQC, UPFC, Unified Power Flow Controllers. Okay, that's why Mohsin sent me that fact. It is a fact device, but DStatCom is not a fact device. It is a custom power device. Okay, which is used to mitigate power quality problem in the distribution system. So we have to study this type of problem, these type of mitigating techniques. Okay, we have done numericals on power filters also. Okay, passive devices. So here we will continue with this DStatCom. DStatCom is used to mitigate current based problems.
I already told you that DStatCom is mature technology. It is controlled power source. It is shunt compensation. It is also called as shunt compensation, active shunt compensation. Okay. Okay. So we have also classified the DStatCom in terms of topology, like voltage source converter based DStatCom. Second, we did current source converter based DStatCom. Second, we classified based on supply. उसमें क्या देखा था? सिंगल फेज, टू वायर DStatCom, थ्री फेज, थ्री वायर DStatCom, फोर्थ इज थ्री फेज, फोर वायर DStatCom. ये हमने टोपोलॉजी पढ़ी थी, इसकी क्लासिफिकेशन. इनकी सबकी डायग्राम भी हमने देखी कल. ओके. So here classification we have done last time. So we will continue with our lecture with, that is, design of DStatCom. Okay. So in this, मैंने अभी आपको बताया था कि DStatCom की बहुत सारी टाइप है, वेस्ट बर्न, सिंगल फेज, थ्री फेज. ओके. सो हमें क्या क्या करना है? सिंगल फेज DStatCom हमारे पास है. Then we have three phase DStatCom या थ्री फेज, थ्री वायर, फोर वायर. सॉरी, ये थ्री फेज थ्री वायर है, थ्री फेज फोर वायर. फोर वायर में न्यूट्रल भी आता है. और इनमें सबको डिजाइन करने के लिए क्या क्या पढ़ने की जरूरत हमें है? जैसे डिजाइन ऑफ डीसी बस वोल्टेज. ओके. सेकंड इज डिजाइन ऑफ, सब में जितनी भी टोपोलॉजी, डिजाइन ऑफ डीसी लिंक कैपेसिटर. थर्ड इज डिजाइन ऑफ इंटरफेसिंग इंडक्टर. फोर्थ इज डिजाइन ऑफ आरसी फिल्टर. इसके बाद हमें पढ़ने की जरूरत है डिजाइन ऑफ रेटिंग्स ऑफ स्विचेस, सॉलिड स्टेट स्विचेस. ये चीजें हमें सारी इसमें डिजाइन करनी है टू मेक ए DStatCom. ठीक है. तो अगर आप याद करोगे, DStatCom मैंने डायग्राम दिखाई थी आपको. दैट वाज, वी हैड दिस डायग्राम. मैं आपको दिखाऊं चाहूंगा. दिस डायग्राम इज थ्री फेज थ्री वायर. दिस इज थ्री फेज थ्री वायर. अब हमने क्या क्या डिजाइन करना है इसमें? जो ये कैपेसिटर है यहाँ पर, जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर एरो पे, दिस कैपेसिटर CDC, ये हमें डिजाइन करना है. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? फिर दिस LR, जो इंटरफेसिंग इंडक्टर, उसको डिजाइन करना है. RC फिल्टर, दिस RF एंड CF, इसको डिजाइन करना है. और क्या बोला? और ये स्विचेस है, इनके रेटिंग्स हमें डिजाइन करने हैं टू मेक इट DStatCom. ओके. तो ये हमारा काम है इस लेक्चर में स्टडी करने के लिए. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सिंगल फेज DStatCom. तो पहले क्या डिजाइन करेंगे? डिजाइन एंड सिलेक्शन ऑफ DC बस वोल्टेज. मतलब वोल्टेज कितनी होनी चाहिए उसकी, जो हमारा जो
डी स्टैटकॉम हो, जो इन्वर्टर की साइड डीसी है, वोल्टेज कितनी होगी? पहले ये किस पे डिपेंड करती है उसकी वोल्टेज? इट डिपेंड्स ऑन द मिनिमम वोल्टेज लेवल required for getting desired AC output during, जब जब हम PWM ऑपरेशन ऑफ VSC, जब उसको हम कंट्रोल करेंगे वोल्टेज उस कन्वर्टर को, अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वोल्टेज की टू गेट डिजायर्ड एसी, जो हम चाहते हैं एसी साइड जो वोल्टेज चाहते हैं, लेट्स सपोज ये मैं बोलूं ये हमारा VSC था, इस साइड डीसी है और ये हमारे इन्वर्टर साइड इस साइड, हम चाहते हैं कितना हमें ये वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना, सो दैट कि हमें यहाँ पे डिजायर्ड एसी मिल जाए फ्रॉम VDC टू AC, दैट इज डीसी बस वोल्टेज. For this single phase, its formula is VDC is should be greater than equal to root 2 times of grid voltage. Okay, ये that's VG, ये बना बोलोगी VS और VG, ठीक है, ग्रिड वोल्टेज बोल रहे हैं, डिवाइड बाय मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ओके, so VG is actually AC output phase voltage, AC output phase voltage. M is modulation index. आपको पता है कि अगर घर में हमारी VG आ रही है लेट्स सपोज 220, 220 या 230 वोल्ट की, ये वोल्ट की RMS, लेट सपोज M हमारा 1 है मॉड्यूलेशन इंडेक्स. मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? जितना V मतलब V मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बाय V कैरियर, उनके बीच में कितना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. लेट सपोज हमारा ये सिग्नल था और ये हमारी कैरियर वेव थी, ठीक है, तो वो ये इनका रेशियो बताता है, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ठीक है, तो जितना साइन सिग्नल नीचे जाएगा उतना ही एम की वैल्यू रिड्यूस होगी. जब दोनों इक्वल होंगे, इनका पीक, दोनों की पीक, देन इट विल बी एम विल बी इक्वल टू 1. ओके, तो जब एम की वैल्यू लेस देन 1 होती, बोलते हैं इसको अंडर मॉड्यूलेशन. जब एम की ग्रेटर देन 1 है, दिस कॉल्ड ओवर मॉड्यूलेशन. ओके, सो हियर एम इज 1, सो VDC कितना होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 इंटू 230 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू इतना, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 325.22 वोल्ट. सो इससे ज्यादा ही हमेशा वोल्ट, इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे वोल्टेज, जो डीसी बस वोल्टेज होनी चाहिए इससे कम. तो हम क्या करते हैं, इससे ज्यादा थोड़ा सा मार्जिन लेके वी टेक 330, 360 हम सिलेक्ट करते हैं. ओके, तो ऐसे डिजाइन करते हैं डीसी बस वोल्टेज, मतलब हमेशा इससे ज्यादा होनी चाहिए, दैट विल बी दिस वन. और हमने क्या सिलेक्टेड की, दिस सिलेक्शन डिजाइन ये क्या था, was selected, we have selected this one greater than that. Okay, after that we have design of, second is design of DC bus कैपेसिटर. अब देखो डीसी बस कैपेसिटर जो है सीडीसी की बात कर रहा हूं, जो हमें यहाँ पे एक इन्वर्टर है जो कंपनसेट कर रहा है पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स को, जैसे AC साइड सिंगल फेज है, और ये सीडीसी की बात कर रहा हूं. अभी तक हमने यहाँ पे VDC डिजाइन की, नाउ सीडीसी फॉर सिंगल फेज सिस्टम. अब ये सीडीसी किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टेंटेनियस एनर्जी, एनर्जी अवेलेबल टू द डी स्टैटकॉम ड्यूरिंग
ट्रांजिट्स। तो अचानक कोई ट्रांजिट आया ग्रिड साइड, अब वो जो ट्रांजिट आया वो इस पे भी इफेक्ट करेगा। तो उस एनर्जी को हैंडल करने के लिए डीसी बस कैपेसिटर कितना वो ऊपर नीचे जा सकती है, डीसी कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी, मतलब वैल्यू कितनी होगी, सो दैट इट कैन सी द चेंज इन इंस्टेंटेनियस एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिट्स। अब ये जो, इसको हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, हम बोलते हैं जितना एनर्जी इस साइड होना चाहिए उतना ही इस साइड भी होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन therefore based upon principle of energy conservation will be applied. Okay, so 1 by 2, इसका फार्मूला था 1 by 2 CD into डिफरेंस ऑफ वोल्टेज। हम बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज ये है नॉमिनल वोल्टेज का स्क्वायर माइनस VDC मिन, कितना मिनिमम वोल्टेज जाना चाहिए इसमें ट्रांजिट में। ओके, इक्वल टू K1 VIAT। ठीक है, अब देखो यहां पे सीडीसी को हमने मेजर करना है, वीडीसी क्या है जो हमने कैलकुलेट किया था, और कितना, लेट्स सपोज हमारे ये वोल्टेज के अक्रॉस कितनी है, लेट्स सपोज ये वोल्टेज हमें नॉर्मल है, और कभी ट्रांजिट की वजह से कभी नीचे आएगी, हम बोलते हैं कितना नीचे आए वो, दैट इज वीडीसी में। तो दिस इज नॉमिनल वैल्यू, ओके, मींस रेफरेंस वैल्यू। सो दिस इज मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड, वोल्टेज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, वेयर एज के क्या है, के इज वेरिएशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग डायनेमिक्स। ठीक है, लेट्स सपोज हम बोलते हैं वेरिएशन कितनी 10% है, तो के कितना होगा, K1 विल बी 0.1। मतलब हम बोले पहले कि इतनी से इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगी, तो ये फैक्टर दिखा था कितना वेरिएशन हुआ, दैट इज K1। और A इज ओवरलोडिंग फैक्टर, कितना ओवरलोड हमारा है डी स्टैट को, V इज फेज वोल्टेज, I यू नो फेज करंट, और T जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, T जो है हमारा T इज वेरी इंपॉर्टेंट, T इज एक्चुअली time by which VDC is recovered, time by which VDC is recovered। recovered means देखिए लेट्स सपोज यहाँ पे यहां से ऐसे हुआ, कितने देर में रिकवर्ड हुआ, दैट इज टी, मतलब कितने साइकिल्स में ये रिकवर्ड हुआ, दैट इज टी। ओके, ट्रांजिट के आने के बाद। नेक्स्ट इज आवर डिजाइन ऑफ आरसी फिल्टर। ओके, दो चीजें हमने कर ली, नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ आरसी फिल्टर। अब आरसी फिल्टर हमें क्यों लगाते हैं, एक्चुअली इट इज ए हाई पास फर्स्ट ऑर्डर tuned tuned at tuned at half switching frequency। मतलब जो हम इन्वर्टर को स्विचिंग कर रहे हैं, सपोज हमने इन्वर्टर को किया 10,000, बट जो इसकी जो हाई फ्रीक्वेंसी डिजाइन किया है, ये हाफ उसको पे करता है, इसको ट्यून किया गया है, मतलब 1,000/2। ओके, सो second, to filter out the noise or ripple
from the PCC voltage. So this is actually the time constant TF is मतलब किसका फिल्टर का टाइम constant of filter is very small than the fundamental टाइम कांस्टेंट। जो हमारी फंडामेंटल वोल्टेज है या जो सप्लाई है उसका टाइम कांस्टेंट बहुत ही ज्यादा होता है एज पर टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस किसका फिल्टर। क्यों इसको जल्दी काम कर टू फिल्टर आउट दैट हार्मोनिक्स एंड नॉइज। लेट अस सपोज देयरफॉर और ये हुआ देयरफॉर दिस आरएफ और जो सीएफ शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन दिस टीएफ। जो हमारा टाइम कांस्टेंट है जो इनका मल्टीप्लिकेशन इसका होगा इट विल बी ऑलवेज दिस आरएफ एंड सीएफ विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस टीएफ। तो आरएफ क्या है? दिस इज रिपल फिल्टर रेजिस्टेंस, रिपल फिल्टर रेजिस्टेंस। और ये क्या है? रिपल फिल्टर कैपेसिटेंस। ओके। वेयर एज जो ये हमारी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है दैट इज टीएस। हम मानते हैं टीएस इज आवर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने इन्वर्टर को किसी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से हम कंट्रोल कर रहे हैं स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। ओके। नो हम मानते हैं दिस आर एफ सी एफ जो है इट इज इक्वल टू टीएस बाई 10। हम हाफ से ज्यादा और कम ले रहे हैं ठीक है ना। ट्यून्ड एट हाफ ट्यूब हम उससे भी कम ले रहे हैं इक्वल टू टीएफ। जो टीएफ हमारा था हम मानते हैं ये इतने इसके बराबर है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सो नाउ आरएफ और सीएफ को हमने क्या बोला ये हमने ट्यून किया हाफ लेस देन दैट। ठीक है दैट इज इक्वल टू टीएफ। लेट टीएस हमारी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है हमारी है टीएस इज लेट सपोज जो हमारा टीएस टू एफएस जो हमारा है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमने कितनी दी 1.8 किलो हर्ट्ज। ये हमने इन्वर्टर को फायर किया विच इज इक्वल टू 1 बाई टीएस। ठीक है। तो इफ हमारा जो आरएफ है 10 ओम लेट्स सपोज दिस इज 10 ओम। टीएस टीएस दिया हमारे पास सीएफ दिया हमारे पास है। तो फ्रॉम दिस देन सीएफ विल बी 5.5 माइक्रोफेरेड। ठीक है। ये वैल्यू निकलेगा अगर 5 देंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो बेस्ड ऑन दिस इज रिपल फिल्टर की वैल्यू एट दिस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी इनकी वैल्यू भी चेंज होती है। अब देखो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि दैट इंपॉर्टेंट इज कि जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि कैसे ये फिल्टर करता है हार्मोनिक्स और रिपल को वोल्टेज को कैसे करता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे वो करता है देखो हमारे पता है जो ये जो ZF होता है दिस इम्पिडेंस ऑफ दिस ये हमारा जो ZFS है जो इम्पिडेंस बाय स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इम्पिडेंस इम्पिडेंस ZFS इम्पिडेंस बाय स्विचिंग फ्रीक्वेंसी।
लेट सपोज हम कैलकुलेट करेंगे ZFS। देखो अंडर रूट ऑफ RF स्क्वायर प्लस XFS स्क्वायर, ठीक है ना। RF कितना हमारा है, RF इज दैट इज 10 ओम एंड CF इज 5.5 माइक्रोफेरेड। एंड हमारे पास XFS कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/ωc, ठीक है। अब फॉर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, ये इसकी वैल्यू डालेंगे जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फाइनली जो मैंने कैलकुलेट किया इट इज 18.93 ओम। सिमिलरली ZF इंपीडेंस बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ZF क्या हो जाएगा, ये नियरली अंडर रूट सेम, फार्मूला सेम है, RF स्क्वायर प्लस XF स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू नियरली 578 92। वाई, तो दोनों जगह जो है IFS है, फार्मूला विल बी सेम, बट यहां पे जब हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली XFS क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फॉर लो हाई फ्रीक्वेंसी XFS विल बी लो, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी नहीं, फॉर लो, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बोला, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इट्स वैल्यू बिकम लो, फॉर लो फ्रीक्वेंसी XFS इज हाई, 1/ω है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, 580, और यहाँ पे कितनी है 19 ओम जस्ट। सो ZFS इज वेरी लेस देन ZF। तो जो भी हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी रिपल्स आएंगे ये इजिली अलो करेगा, क्योंकि वो इंपिडेंस उसको क्रिएट कम कर रहा है, ये अपोज उसको कम कर रहा है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल जो हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ग्रिड वोल्टेज। दैट इज हाउ वी फिल्टर आउट द हार्मोनिक्स। और किसी को समझ नहीं आई पूछ सकते हो आप यार। बट यहां पे क्लियर बोलना चाहता हूं मैं आपको, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ओके, व्हेन वी हैव हाई फ्रीक्वेंसी देन दिस इंपिडेंस ZFS विल बी इंपिडेंस बाय द फिल्टर दैट इज आर, जो हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे फिल्टर हमारा है, ठीक है, ठीक है, पर सिंगल फेज या थ्री फेज। अब ये हमारा है, और इसका इंपिडेंस कम होगा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, फॉर लो फ्रीक्वेंसी इट हैज हाई इंपिडेंस, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी कौन सी, फंडामेंटल, जो हम बाईपास नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हार्मोनिक्स और रिपल बाईपास हो जाए। तो हार्मोनिक्स जो है वो रिपल से, जिसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से है, वो यहां से हम अलो करते हैं, ठीक है। और इसका डिजाइन इट इज सेम फॉर थ्री फेज थ्री वायर और थ्री फेज फोर वायर, सबके लिए डिजाइन सेम, यही सेम डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज वोल्टेज, वोल्टेज एंड करंट रेटिंग्स ऑफ द स्विचेस, जो हमारे स्विचेस हैं उनकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अंडर डायनेमिक कंडीशन की बात बोलो ना, क्योंकि नॉर्मल तो ठीक है, बट अंडर जो है डायनेमिक कंडीशंस में कितनी रेटिंग होनी चाहिए। अचानक ग्रिड में फ्लक्चुएशन आई, अचानक ग्रिड में सैग हुआ, स्वेल हुआ, तो सैग को तो हैंडल कर सकता है, बट स्वेल हो गया, आपकी स्विचिंग की रेटिंग है 600, जो वो हैंडल कर सकता है जब रिवर्स में, रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज, अचानक वोल्टेज 600 से 700 हो जाए, क्या वो नहीं कर सकता, नहीं, इट विल ब्रेक, और ठीक है ना। सो स्विच रेटिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो वी नीड टू डिजाइन इट। तो इसमें जो है VSW विच इज इक्वल टू VDC वोल्टेज कितनी है प्लस VD। ये VD क्या है, VD है ओवरशूट इन द DC लिक वोल्टेज,
सो लेट्स सपोज हम मानते हैं 10% ओवरशूट होगा डीसी वोल्टेज, ठीक है। तो स्विच रेटिंग क्या होगी फॉर, देयरफॉर फॉर वीडीसी, हम मानते सिंगल फेज में कितना था 360 लिया था, तो 10% ऑफ दिस विल बी 10% ऑफ दिस विल बी वीडी, दैट विल बी इक्वल टू 360 into 0.1 which is equal to 36 volt. So V switch rating will be equal to 360 plus 36 which is equal to 396. But so with an appropriate safety फैक्टर, हम सेफ्टी फैक्टर इसमें लगाते हैं, हम मानते हैं हम स्विच लेंगे 600 वोल्ट, इससे ज्यादा ही लेंगे, ज्यादा स्विच रेटिंग लेंगे हम, ठीक है ना, आईजीबी टू बी सिलेक्टेड, हम ऐसे करते हैं। या मार्केट में जो भी इसके नेक्स्ट अवेलेबल है हम ज्यादा ही रखते हैं 100-200 वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वोल्टेज स्विचिंग वी हैव डिजाइन। सिमिलरली करंट रेटिंग, करंट रेटिंग क्या होगी, ISW विच इज इक्वल टू 1.25 इंटू आई करंट रिपल, पीक टू पीक रिपल कितना है, प्लस पीक करंट, करंट कितनी जा रही है सिस्टम में, पीक करंट कितनी है, पीक करंट मींस ये हमारा साइन वोल्ट करंट है ग्रिड साइड, दिस इज पीक करंट, और पीक टू पीक रिपल कितना हो रहा है, दैट इज आवर स्विच रेटिंग। अब पीक टू पीक रिपल, रिपल कहाँ है स्पेशली, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है इस साइड डीसी है और ये एसी है, यहाँ पे करंट क्या होगी, पीक करंट जो होगी, जो ये करंट होगी वही यहाँ पे पीक करंट है। आल्सो इसमें रिपल कितना है, पीक टू पीक रिपल कितना है, लो टू हाई, ये ऊपर से लो, ये रिपल मतलब डेल्टा आई की बात बोल रहा हूं मैं, कितना डेल्टा आई है, दैट इज दिस आई रिपल, ठीक है। लेट अस सपोज इसका हमने पीक करंट जो है, जो पीक करंट जो हमने यहाँ पे लेंगे, लेट सपोज यहाँ पे हमारा ये 200 है, तो 200 जो पीक करंट है उसका हम लेंगे कि रिपल जो उसका परसेंटेज है दैट इज 10%। सो आई पीक लेट सपोज हमारा कितना है 200 एम्पियर, और रिपल परसेंटेज रिपल कितना, आई रिपल कितना, पीक टू पीक कितना हुआ, दैट इज 10% ऑफ दिस, so 10% of this will be equal to 20, so this will be 1.25 into 20 plus 200, so this will be the 220 into 1.25 will be the ampere current। तो अगर ये कुछ भी है तो उससे ज्यादा ही हम सिलेक्ट करते हैं, लेट्स अगर ये 300 है वी विल टेक 400, सेफ्टी फैक्टर मोर, ठीक है ना, क्या पता ज्यादा ट्रांजिट आ जाए, ठीक है ना, रिपल ज्यादा है, तो ये हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं। एक हमारा और एक बाकी इसमें जो इंटरफेसिंग इंडक्टर है, फिफ्थ इंटरफेसिंग इंडक्टर, LR, ठीक है ना। सो इसका जो फॉर्मूला है, जो इंटरफेसिंग इंडक्टर है, दैट विल बी M VDC, it should be greater than equal to M VDC by 4FC डेल्टा I रिपल, जो ठीक है ना, जो रिपल करंट है, ठीक है। तो मींस इंडक्टर जो करंट है, इंडक्टर जो सॉरी इंडक्टर जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो डिपेंड कर रही है वीडीसी वोल्टेज कितनी है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, और रिपल कितना है। जितनी ज्यादा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी उतना ही इंडक्टर का डिजाइन कम हो जाता है, उसकी मतलब साइज कम हो जाता है फॉर ए हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, और जितनी ज्यादा डिस्लिंग वोल्टेज उतना ही हमें इसका बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमें एक ऑप्टिमल डिजाइन देना पड़ता है कि कहां पे वीडीसी और एफएस का क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज द इंटरफेसिंग इंडक्टर जो फॉर सिंगल फेज के लिए हम कर रहे हैं। तो एम इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, वीडीसी एंड एफएस, ठीक है। लेट्स सपोज अगर एम 1 है एंड वीडीसी इज 360 हियर वोल्ट एंड एफएस वाज 1.8 किलोहर्ट्ज, तो रिपल परसेंटेज मान रहे हैं करंट का, लेट्स सपोज जो भी सिस्टम में करंट चल रही है उसका मानते हैं 2-3% कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बेस पे आप एलआर को फाइंड कर सकते हो। ओके, तो दिस इज हाउ वी डिजाइन द पैरामीटर्स फॉर सिंगल फेज सिस्टम। नाउ डिजाइन अ पैरामीटर फॉर थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, थ्री वायर डी स्टैटकॉम। देखो स्विचिंग जो हमारे जो रेटिंग्स ऑफ स्विचेस है, ठीक है ना, जो फॉर्मूला होगा दैट इज सेम, दैट इज स्विच रेटिंग का फॉर्मूला और करंट रेटिंग फॉर्मूला दैट विल बी सेम। सेकंड, जो आरसी और आरएफ और सीएफ का फॉर्मूला दैट विल बी सेम, फिर कोई चेंज नहीं होगी। अब चेंज क्या होगा, डिजाइन ऑफ डीसी लिंक वोल्टेज। फर्स्ट क्या है, ए डिजाइन ऑफ डीसी लिंक वोल्टेज। अब थ्री फेज है, थ्री फेज में फॉर्मूला जो वीडीसी का है दैट इज शुड बी, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 √2 VLL by √3M। VL means line voltage, AC line voltage of a DC statcom. For M is equal to 1 and VLL is equal to let's मानते हैं 415 वोल्ट। अगर VDC आप कैलकुलेट करोगे by putting these value we will get nearly 677.9 volt, 69 volt। ओके, बट वी शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज 700 वोल्टेज इज सिलेक्टेड। मार्जिन देने के लिए अगर वोल्टेज थोड़ा बढ़ भी जाए उस साइड ग्रिड साइड, तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड वोल्टेज हमने यही रखी हमारे। ओके, सो दिस इज हाउ डीसी लिंक वोल्टेज ऑफ ए थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम इज डिजाइन। आफ्टर दैट डिजाइन ऑफ सीडीसी कैपेसिटर जो हम करते थे, वो सेम फॉर्मूला है, दैट इज 1/2 CDC VDC स्क्वायर माइनस VDC मीन स्क्वायर इंटू, बट वहां पे अब क्या होगा, थ्री टाइम्स होगा K1 VIAT, बाकी सब सेम है। अब थ्री इसमें मल्टीप्लाई होगा थ्री फेज के लिए, ठीक है, वेयर वोल्टेज करंट आर फेज वोल्टेज, ठीक है, ये फेज वोल्टेज है। अगर लाइन होता फिर √3 होता, ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, आप वैल्यू डाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड इज डिजाइन ऑफ इंटरफेसिंग इंडक्टर। इंटरफेसिंग इंडक्टर का काम क्या होता है, करंट रिपल्स को रिमूव करना, टू रिमूव करंट रिपल्स। ओके, अब इसका डिजाइन जो है एलआर जो है फॉर्मूला है, ये डिपेंड करता है √3M VDC डिवाइड बाई 12 AFS आई करंट रिपल, जो मैं डेल्टा आई रिपल बोल रहा था, सेम फॉर्मूला, जस्ट मॉडिफिकेशन है थोड़ी सी बेस्ड ऑन थ्री फेज सिस्टम। ओके, सो दिस एलआर, ठीक है। सो ये आपका इंटरफेसिंग इंडक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ठीक है, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसके बेस पे। वियर एज फोर जो हमारा डिजाइन था दैट वाज डिजाइन ऑफ रिपल फिल्टर, दैट विल बी सेम एज फॉर सिंगल, सेम एज सिंगल फेज डी स्टैटकॉम। वहां एक ही लगाते थे ब्रांच, अब देखिए थ्री फेज के लिए तीन ब्रांचों में हमें लगाना है, बट वैल्यू कैलकुलेशन विल बी सेम क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो फ्रीक्वेंसी कॉमन है। सो दिस आर कनेक्टेड टू थ्री फेज लाइंस, ठीक है, तीन लाइन से R/B। ओके, मोस्टली हम क्या टेक करते हैं, जो आर एफ जो है हमारा 5 ओम है, तो CF लेते भी, वो भी नियरली 5 और 10 माइक्रोफेरेड लेते हैं। और RF10 लेते हैं तो 10 ओम है, तो CF जो हमारा है वो हम लेते हैं 5 माइक्रो आर 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। डिजाइन वो डिपेंड करता है, डिजाइन पे डिपेंड करता है। लास्ट इज वोल्टेज एंड करंट रेटिंग। रेटिंग ऑफ स्विचेस ये भी सेम है जैसे हमने वहां पे किया था, VSW इज इक्वल टू VDC प्लस VD एंड ISW विल बी 1.25 आई करंट रिपल पीक टू पीक, कितना जा रहा है, प्लस IP।
ओके, दिस वाज द फॉर्मूला। ओके, अब जितना भी हमने थ्री फेज थ्री वायर का किया, तो जो थ्री फेज फोर वायर है, सब डिजाइन फार्मूला सेम है, ऑल फार्मूलाज एक्सेप्ट वन, दैट इज एल आर। जो इंटरफेसिंग इंडक्टर है दैट इज डिफरेंट। एल आर और एल आर एन न्यूट्रल का डिफरेंट है, और जो हमारा फेज करंट का डिफरेंट है। ओके, सो व्हाट इज फेज करंट का क्या था, 3 एम वी डी सी बाई 12 ए एफ एस आई करंट रिपल। न्यूट्रल का रखते हैं एम वी डी सी बाई 3 ए एफ एस आई करंट रिपल। बस डिफरेंट यही है। ठीक है, हमेशा इसकी वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि इसकी करंट वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट दूसरी चीजों पे भी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब ऐड करने के वजह से सिंगल फेज तीन लोड से उनका सम का सबका सम जो है आर न्यूट्रल करंट है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी की वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है एल आर एम। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी करंट रिपल कितनी करंट्स है और वोल्टेज है, और फॉर्मूला जो है थोड़ा चेंज हो जाता है न्यूट्रल के। ठीक है, इज ऑल अबाउट द डिजाइन ऑफ दिस डी स्टैटकॉम सिस्टम। वी हैव कंप्लीट डिजाइन। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं एग्जाम में आपको। आफ्टर दैट वी हैव नाउ कंट्रोल। देखो हमने डिजाइन भी किया, क्लासिफिकेशन भी की, नाउ कंट्रोल। कंट्रोल कैसे किया जाता है, सो नाउ वी हैव कंट्रोल ऑफ डी स्टैटकॉम। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो कंट्रोल है, तो पहले पता कि बेसिक फंक्शन क्या है डी स्टैटकॉम का। हमने लास्ट टाइम भी बोला था मैंने आपको, इट इज मिटिगेट टू यूज टू मिटिगेट करंट बेस्ड प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पीक्यू प्रॉब्लम क्या क्या है, सो इसमें आती है रिएक्टिव पावर, देन वी हैव अनबैलेंस्ड करंट, देन वी हैव हार्मोनिक्स। जो भी लोड में प्रॉब्लम है, न्यूट्रल करंट अगर थ्री फेज फोर वायर है। ठीक है, तो ये सम बेसिक प्रॉब्लम और भी हो सकती है। ठीक है, तो मोर ओवर जो डिस्टेटकॉम हमारा है, सेल्फ सपोर्टिंग डीसी बस है, सेल्फ सपोर्टिंग डीसी बस ऑफ वीएससी। अगर आपने देखा डायग्राम जो वीएससी की है, मोस्टली यहाँ पे कैपेसिटर होता है जैसे इन्वर्टर के इस साइड, बट जो कन्वेंशनली स्टार्ट क्या किया था हमने, बैटरीज भी लगाई थी पहले। ठीक है ना, तो इस साइड बैटरी भी होती थी, बहुत से डिफरेंट मेथड होते थे। अब क्या किया, सिर्फ कैपेसिटर को हम सेल्फ सपोर्टिंग, हम ग्रिड से ही एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारा ये हमारे पास एक और दूसरी चीज क्या है, एक चीज तो ये है सेल्फ सपोर्टिंग, दूसरी आईजीबीटी बेस्ड करंट कंट्रोल्ड वीएससी, वीएससी विद डीसी बस। ठीक है ना, करंट कंट्रोल्ड है ये जो आईजीबीटी है, वीएससी जो हमने कंट्रोल किया है वो करंट कंट्रोल्ड है। ओके, सो लेट्स सपोज वी टेक दैट थ्री फेज थ्री वायर का हम देख रहे हैं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो हमारा एक चीज मैं इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, लेट्स सपोज दिस हमारा ये हमारा ग्रिड है, जो हमारी यूटिलिटी है ग्रिड, और यहां से हमने इस लोड को पावर दी हमने, बट दिस लोड हैज प्रॉब्लम्स, दैट इज लीनियर और नॉन लीनियर लोड है। जो हमने अभी प्रॉब्लम्स बताई वो सारी इन चीजों में है। अब इसको कंपल हम चाहते हैं कि इस साइड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम चाहते हैं जो ग्रिड है, ये ग्रिड हमारे है, हम चाहते हैं यहाँ पे ये करंट जो आई एस है, जो ग्रिड करंट आई एस या आई जी है, इट शुड बी ऑलवेज साइनोसॉइडल। और दूसरी क्या होनी चाहिए, अगर ग्रिड वोल्टेज वीएस है, साइनोसॉइडल और इन फेज, साइनोसॉइडल भी होना चाहिए और इन फेज भी होना चाहिए, ये हमेशा हम चाहते हैं। बट लोड में क्या हो सकता है, इट कैन हैव करंट क्या,
एक तो लैगिंग भी हो सकता है अगर लोड आरएल लोड है, या लीडिंग भी हो सकता है, इवन हार्मोनिक्स भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं ग्रिड साइड ये ना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा, वी वांट दिस वन। ठीक है, उसके लिए क्या कर, लेट्स दिस इज आई एल, और यहां पे मैं लगाता हूं इसको इंप्रूव करने के लिए, इस साइड के लिए एक डी स्टेप को हम लगाता हूं। ठीक है, और यहां पे दिस इज वीएससी, और यहां पे इस साइड क्या है, कैपेसिटर है वीडीसी, और यहां पे इंटरफेसिंग इंडक्टर भी है। मैं अब यही तो लाइन डायग्राम बना रहा हूं मैं, दैट्स व्हाई लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, दिस इज आईसी, आई एस, आई सी, आई एल। अब मुझे बताओ कि हम क्या करते हैं, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। इट नीड पल्सेस, इट नीड पल्सेस। पल्सेस कहां से करेंगे, कंट्रोल एल्गोरिथम, एक हम कंट्रोल एल्गोरिथम बनाएंगे, कंट्रोल एल्गोरिथम। अब यहां पे देखो, इसको इनपुट क्या क्या जाएगा सो दैट कि इट कैन क्रिएट पल्सेस फॉर दिस डी स्टैट का, सिंगल फेज या थ्री फेज। अगर थ्री फेज में है तो हमें कितने स्विच चाहिए, 6 स्विचेस के लिए हमें चाहिए पल्सेस। तो ये क्या, हम क्या करते हैं, इससे लोड करंट सेंस करते हैं, लोड करंट देते हैं हम इसको, वी गिव दिस डीसलिक वोल्टेज, ये भी सेंस करते हैं, हम बोलते हैं वोल्टेज मेंटेन है कि नहीं, लोड करंट, देन सोर्स करंट को भी देते हैं। ओके, और कुछ लोग क्या करते हैं, और ये वीएससी वोल्ट हम मानते हैं वोल्टेज सेम है, वो वीएससी को भी हम लाते हैं, इसको देते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस करंट को भी लेते हैं जो सी है। ये सारा बना के हम एक पल्सेस निकालते हैं, और इस इन्वर्टर को बताते हैं, क्या बोलते हैं कि तुमने इस ग्रिड करंट को ठीक करना है, ऐसा बनाना है। ठीक है, क्या पल्स को, पल्सेस क्या बता रही हैं इसको, कि तुमने ऐसा बनाना है ग्रिड करंट को, या कंपनसेटेड करंट को ऐसा बनाना है। ठीक है ना, अगर सिंगल फेज है, सिंगल फेज में हमें 4 पल्सेस को जनरेट करना होता है, 4 स्विच है। थ्री फेज, 3 वायर में 6 पल्सेस को जनरेट करना है, पल्सर जनरेटर। थ्री फेज 4 वायर को 8 पल्सेस जनरेट करनी, क्योंकि 8 स्विचेस होते हैं। सो वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ, अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, देखो सेंस करने के लिए 2-3 चीजें जरूरत है हमारे पास है। वी नीड हॉल इफेक्ट सेंसर्स। अब सेंसर्स क्या है, लेट्स सपोज हमें करंट को सेंस करना है, वोल्टेज को, सो वी नीड बोथ वोल्टेज एंड करंट सेंसर्स। ठीक है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर चाहिए, जहां पे इस कंट्रोल जो हमने सेंस के जो पैरामीटर को हम उसको सेंस करके कंट्रोल बनाया, वो फिर वहां से हम पल्स जनरेट करते हैं डीएसपी से। ठीक है, आफ्टर दैट वी नीड, इस सिस्टम में और क्या चाहिए, हमें रिपल फिल्टर चाहिए। क्यों, रिपल फिल्टर इज यूज टू मिटिगेट वोल्टेज, जो वोल्टेज में जो हमारे रिपल्स और हॉर्न नॉइज आता है उसको रिमूव करने के लिए। फोर्थ है हमारा इंटरफेसिंग इंडक्टर, इट इज यूज टू रिमूव करंट बेस स्विचिंग रिपल्स। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट है कुछ जो सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। मोस्ट ऑफ वी हैव डिजाइन दिस सीडीसी, वीडीसी कितना है, एलआर कितना है, ये हमने, और स्विच की रेटिंग को भी हमने डिजाइन की, ये सारी चीजें हमने डिजाइन की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंट्रोल एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे।